everyone, welcome to the online classes. Now today we will start our new chapter, that is chapter number 4, that is simple equations. In this chapter we will discuss about introduction of simple equation, linear equation in one variable, solutions of an equation by trial and error method, solution of an equation by direct method, and applications of simple equations to practical situation. Let's start. We shall study the meaning of an equation and also that of a linear equation. We shall also discuss about the meaning of the solutions of a linear equations and two methods of obtaining it. One by trial and error method and another by a systematic method, that is involving addition, subtraction, multiplication और division. हमें linear equation को solve करने के दो methods हैं. First method is trial and error method, and second one is that is with the help of operations, that is addition, subtraction, multiplication and division, right? Same non-zero numbers on both sides of the equation. Now सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इक्वेशंस क्या होती है. And equations is a condition on variable such that two expressions in the variable should have equal value. Equations क्या होती है जिसके साथ variables भी होती है. क्या होते हैं variables? That is x, y. Numbers के साथ साथ क्या होते हैं variables. Variables क्या होते हैं? For example, alphabets A, B, C, D, X, Y, Z, they all are known as variables. Right? For example, you can see x plus 7 नंबर के साथ क्या है स्टूडेंट्स? नंबर के साथ वेरिएबल है, दैट इज x. 3y plus 8 is equals to 17. नंबर के साथ क्या है? वेरिएबल, दैट इज y. x upon 4, x क्या है? वेरिएबल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर इक्वेशन. क्या होता है लीनियर इक्वेशन? An equation in the highest power of the variable involved is 1 is called a linear equation. 2x minus 5 is equals to 8. हमें इस ये linear equation है, हमें इसको solve करना है. Right? हम कोई example से देखते हैं. Write the following statements in the form of equation. The sum of 4 times x and 25 is 43. तो हम इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ 4x. तो ये बोल रहा है द सम ऑफ 4 टाइम्स, तो ये क्या बन गया? 4x. एंड 25 इज, और 25 इज 43. तो हमें ऐसे लिखना है 4x प्लस 25, इन दोनों का सम क्या होगा? 43 होगा. नेक्स्ट, इफ यू वुड सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 8, ये बोल रहा है कि अगर 8 टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? ये 8x माइनस 7 is equals to 28. हम यहाँ पे p के जगह x भी यूज कर सकते हैं. 8 टाइम्स बोला ना उसने, तो ये हो गया 8x फ्रॉम 8, तो माइनस 8, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 28. आई होप यू अंडरस्टैंड. बाकी चीजें हम चैप्टर के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, दैट इज चेक whether the value given in the brackets is the solution to the equation or not. हमें ये बताना है इसको सॉल्व करने पे अगर ये वैल्यू आती है तो हमारा आंसर सही है, और अगर ये सॉल्यूशंस नहीं आते तो वह हमको क्या लिखना है? नो लिखना है. राइट? लेट्स स्टार्ट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज x plus 6 is equals to 15. x plus 6 is equals to 15. चलिए हम निकालते हैं. 15 ये इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का 6 बन गया. तो स्टूडेंट्स 15 माइनस 6 तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये तो 9 हुआ. तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ लिखना है x
9 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। जो 9 है वो इक्वल नहीं है किसके, 2 के। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ये 8 होगा, 15 minus 6 it will be 8. 1 2 3 4 5 6, 15 minus 6 1 2 3 4 5 6, that will be 9. सही था हमारा आंसर। Now move to the next, that is second part। हमें यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिखना है, that is x equals to 2, तो ये हो जाएगा नो। सेकेंड पार्ट, that is 4x plus 8, 4x plus 8 is equals to 16, और ब्रैकेट में क्या है हमारा, x equals to 2। चलिए 4x तो हो जाएगा 16 minus 8, 4x equals to 8, x equals to 8 upon 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू हमारी 2 आई है, राइट। तो ये इसके इक्वल हो गया, किसके, ये जो वैल्यू थी, तो ये हो गया हमारा यस, राइट। तो ये नॉट इक्वल हो गया 2 के, राइट। तो इसमें ये इक्वल हो गया, तो ये हो गया यस। One more part I will solve for you, and rest of the parts is your homework. That is 7p plus 8. Third part, 7p plus 8 is equals to 43, और p की वैल्यू आनी चाहिए 5, 43, p वैल्यू 5। तो स्टूडेंट 7p 43 आ गया माइनस का 8, तो स्टूडेंट्स 1 कैरी 8, 9 10 9 10 11 12 13, तो ये आ गया 5 एंड रिमेनिंग 3, तो 7p इज इक्वल टू 35, p इक्वल्स टू 35, p दैट इज 7, तो अपन ये हो जाएगा 7 5 जा, तो p की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, then we will move to the next question, that is second। okay students, chaliye next, now rest of the parts from 4th to 8th is your homework। next, that is write equations from the following statements। हमें कुछ statements given है, I will solve first to 5th statements and 6th to 10th is your homework। The sum of the number x and 8 is 13। ये बोल रहा है जो ये numbers है इनका sum क्या होना चाहिए, 18, तो x plus 8 is equals to 13, ये बन गया। 5 subtracted from p is, ये बोल रहा है जो 5 है वो subtracted होगा p से, तो क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5 is subtracted from p is 15, तो ये बोल रहा है 5 is subtracted from p is equals to 50। now 15 टाइम x is 75, ये बोल रहा है 15 टाइम x जो है is equals to 75। next, the number p divided by 6, the number p divided by, ये बोल रहा है p divided by 6 gives 50। next, 1/6 of p is 6, 1/6 of p is 18, क्या हो गया हमारा, 1/6 of p is 18, तो हम यहाँ पे p कंसिडर करेंगे, राइट। 1/6 ऑफ, अगर हम 1/6 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो यही आएगा p अपॉन 6, राइट। तो ये हो गया p अपॉन 6 इज इक्वल टू 18, and rest of the parts is your homework। now move to
to the next. That is, if you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is third question. And rest of the parts is your homework in this. First to 8. Question number third में write the following equations. This rest of the part 6 to 10 is your homework. Next, write the following equations. अभी हमने क्या किया था, इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने ये चीज फॉर्म की थी. अब हमें इक्वेशंस गिवन है, हमें ये फॉर्म करना है. राइट, तो चलिए हम करते फर्स्ट का. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म. मैं आपको फर्स्ट का बता रही हूँ. द सम ऑफ number, the sum of number x and 7 is 50. ये हो गया हमारा फर्स्ट का. नाउ सेकेंड का बता रही हूं मैं आपको. दैट इज p subtract, that is 8 is subtracted, 8 is subtracted from p is 32. सेकेंड का भी फॉर्म हो गया. नाउ थर्ड, दैट इज थर्ड आई एम राइटिंग हेयर. दैट इज क्या है, द नंबर p, the number p is divided by, किससे डिवाइड हो रहा है, 5. The number p is divided by 5. क्या ऑब्टेन हो रहा है, gives, क्या दे रहा है हमको, gives 6. ये हो गया थर्ड. नेक्स्ट वन इज, दैट इज 7x is equals to 42. तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका लिखेंगे 54th. आई एम राइटिंग हेयर. That is 7 times x is 42. तो ये हो गया हमारा 4. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इज दिस. क्या हो गया, the sum of number is 15. Right. Second, 8 is subtracted from p. 8 is subtracted from p gives 32. Third part, the number p, ये नंबर p है, डिवाइड कर रहा है 5 को और क्या दे रहा है 6. फिर 7x is equals to 42. 7 times x is 42. Now 5th to 8th is your homework. Okay students. Okay students, now move to the next. That is, I hope you understand. Now, linear equations in one variable. Almost everybody knows about weighing balance, right? When we go to the market to buy some vegetables, the vegetable vendors put the vegetables on one pan of the balance and measuring weights on the other pan. क्या करता है, हम जब वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होता है उनको वेग करके हमको देता है. एक तरफ क्या होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और दूसरे टाइम उसके मेजरिंग वेग्स होते हैं. दैट इज 100 ग्राम, 500 ग्राम. राइट, आपने देखे होंगे. when the weights on the other pen, when the needle comes in the middle, अगर जब जो उसकी वो नीडल होती है, मेजरिंग करने की जो नीडल होती है मिड में, वो he says that weights on the both side are equal. जब वो दोनों बैलेंस हो जाते इक्वली, तो the vegetable vendor compares the weight of item with the standard weight. If we add, subtract, multiply or divide on one side of the balance, the same operation is to be done on the other side of the balance to maintain the balance. हम क्या करते, ऐड करते, सबट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई करते, तो वो सेम ऑपरेशंस नेक्स्ट साइड पे भी होंगे बैलेंस, टू मेंटेन दी बैलेंस.
64. 18 divided by 6, that is 3. तो ये क्या हो गया? Arithmetic. Now, the above statements with the sign of equality are statements of equality. जो above sign है equality का, that is equals to sign, that is known as statements of equality or just equality. Right? Now, we know that in the statements of equality there are no variables or literals. आपने देखा होगा statements of equality में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स और लिटरल्स नहीं थे. था क्या कोई वेरिएबल? नो. वेरिएबल्स क्या होते स्टूडेंट्स? दैट इज एक्स वाई जेड, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, ये नहीं थे. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ एन इक्वेशन. अब जो हम एग्जांपल देंगे इसमें वेरिएबल्स भी होंगे. तो यू कैन सी x plus 9 is equals to 7. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? x plus 9 is equals to 7. 6x plus 7 is equals to 9x minus 10. X upon 4 is equals to 24. 6a plus 2b is equals to 25. 3a. इन सब में वेरिएबल्स है और ऑपरेशंस भी है, एडिशन और इक्वल्स टू के भी साइन है. तो आपने देखा होगा the equations had two sides. ये तो आपको पता चल गया. This one is the one side and this one is the second side. इसको हम बोलते हैं LHS is equals to RHS. अगर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमारा आंसर सेम आता है तो हम लिखेंगे LHS equals to RHS, that is hence proved. So students, the equations have two sides, that is left hand side and right hand side. There is an equal sign और उनके बीच में क्या होता है? इक्वल का साइन होता है. अगर इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा तो हम लिखेंगे LHS is equals to RHS. क्या होता है LHS का फुल फॉर्म? लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का राइट हैंड साइड. राइट? The equation says that the value of LHS is equals to the RHS. Now, an equation can have one or more variables. इक्वेशन में एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, a b c d, and these can have power 1 or power. Here we will consider those equations only which have single variable whose power is 1. The statement of equality involving one variable whose power is 1 is called linear equation in one variable. जिसमें वेरिएबल भी 1 होगा, 1 पावर होगी, हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब एक ही एक्स वाई जेड. आई रिपीट इट अगेन, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल ऑफ whose power is 1 is called linear equation of one variable. आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. नेक्स्ट, the value of variable which satisfy the equation. अगर कोई वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई करती इक्वेशन को तो हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. In other words, we can say that value of variable from which LHS of the equations is equals to the RHS, that is a solution to the equation. For example, x equals to 3 is the solution. अब हमें इसको प्रूव करना है कि x equals to 3 कैसे आया. तो 2x is equals to 9 minus 3. तो क्या हो गया? 2x is equals to 6. तो x equals to 6 upon 2. तो ये ऐसे आया 3. तो LHS is equal to RHS. ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं solution of an equation by trial and error method. Early Egyptians used to solve equations by trial and error method. जो अर्ली इजिप्टियंस थे वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे? ट्रायल और एरर मेथड. राइट? दे डिजाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल इन इक्वेशन एंड सी whether it is made LHS is equals to RHS of the equation. If they went on assigning the values to the unknown variable till, वो लोग तब तक ट्रायल और एरर मेथड का यूज करते थे जब तक LHS और इक्वल्स टू RHS प्रूव नहीं हो जाता था. राइट? दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. लेट अस कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन x upon 2 plus 8 is equals to 11. We assign various values for x and stop only when the value satisfies.
हम तभी रुकेंगे जब तक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, राइट। ये रही हमारी टेबल, जब तक ये LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ क्या किया इन्होंने, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8, ये LHS है और ये RHS है, हाफ प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17/8, आंसर क्या है 11। नेक्स्ट हाफ इंटू 2 प्लस 8, तो 2 से 2 तो हो गया कट, देन 8 इज इक्वल्स टू, और 8 प्लस 1 क्या हो गया, दैट इज 9। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये तो कट हो गया, राइट। 1 प्लस 8 ये हो गया 9 और 9 हो गया, राइट। नेक्स्ट हाफ इंटू 3 प्लस 8, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, 3 1 जा 3, 3/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 19/2। नेक्स्ट अभी भी नहीं हुआ है, 4 1 जा 4, तो ये कट हो गया 2, ये हो गया 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 8 क्या हो गया 10। नाउ 5/2, 5 1 जा 5, 5/2 प्लस 8, तो ये हो गया 21/2। जब तक या 11 नहीं आ जाता, हम हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, तब तक हम ये करते रहेंगे। इसको हम कहते हैं ट्रायल एरर मेथड। क्या कहते हैं, ट्रायल एरर मेथड। नाउ हाफ इंटू 6 प्लस 8, तो ये कट हो गया 3, 8 प्लस 3 क्या होता है 11, हमारा आंसर आ गया 11। दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। जो इजिप्टियंस थे ना अर्ली, वो यही मेथड यूज करते थे, ट्रायल और एरर मेथड का, जब तक उनकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। नाउ solutions of an equation by direct method। सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड मेथड काफी लेंदी हो गया और टाइम कंज्यूमिंग हो गया। जो ये ट्रायल और एरर मेथड था, ये काफी लेंदी था, देखा ही आपने, स्टेप बाय स्टेप चलता गया, 6 स्टेप्स में जाके कंप्लीट हुआ है, तो काफी लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो इसके जगह दूसरा मेथड आया, दैट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो दूसरा मेथड कौन सा था, डायरेक्ट मेथड, जो इजीली और फास्ट, जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम भी नहीं हो और लेंथी भी नहीं हो और फटाफट सॉल्व भी हो जाए। लेट अस ऑब्जर्व वेकिंग बैलेंस। द लेफ्ट पैन ऑफ द बैलेंस कंटेन unknown numbers of marble, say X marble and 6 marbles. The right pan of the balance contain 10 marbles. We see that both the pans balance each other. So we have दो बैलेंस है, एक है x प्लस 6 और एक है x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी बॉल्स 10। तो ये कह रहा है जब हम इन दोनों को वेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 6 इक्वल टू 10। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, तो ये हो गया 10, इसको मैंने वहां शिफ्ट किया, तो ये x की वैल्यू क्या आई 4 आई, कितनी आई 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो मैंने अभी फाइंड आउट की थी 4 यहाँ पर, तो वी टेक आउट 6 मार्बल्स फ्रॉम ईच साइड, both the pens still balance each other, so we have x equals to 4। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से हमने 4 मार्बल्स, वी ऑब्जर्व द बैलेंस, द लेफ्ट पेन ओरिजिनली कंटेन्स x marbles but now have 3 marbles are missing। The right pant of the balance contains 4 marbles। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई x minus 3 is equals to 4। तो ये क्या हो जाएगा x equals to 4, माइनस का 3 है वहां जाके प्लस का, तो x equals to 4 5 6 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। ओके x की वैल्यू 7, ये देखो x की वैल्यू 7। So we conclude that whatever we do to the one side of an equation, we must also do it to the other side। हम जो भी इस इक्वेशन के साथ करेंगे वही हम सेकेंड इक्वेशन की भी तरफ करेंगे, राइट। तो अब रूल 1 देखते हैं, we can add the same number to the both side of the equation। हमने क्या किया इसमें,
ये है हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये x ये यहाँ था माइनस का, ये यहाँ जाके प्लस का हो गया, तो 3 प्लस 5, तो ये क्या हो गया 5 6 7 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। Second, we can subtract the number from both side of the equation. For example, x plus 5 is equals to 9. तो ये क्या हो जाएगा 9, ये यहाँ जाके माइनस का 5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर थर्ड, we can multiply both sides of the equation by सेम नॉन जीरो। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे हम, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 का क्या होता है 35, तुम्हारी x की वैल्यू आ गई 35। चलिए मल्टीप्लाई से भी देख लिया, अब देखते हैं डिवाइड से। 4, we can divide both the sides of the equation by the same non-zero। तो x equals to, देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 28 अपॉन 7, 7 4 जा 28, तो x की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया हमारे 4 रूल्स, addition, subtraction, multiplication and division। Now move to the next, that is transposition। In place of adding or subtracting the number on both sides of the equations, we can transfer a term from LHS to RHS, that is known as vice versa। We remove the term from one side of the equation and write it to the opposite sign of the other sides of the equation। हम यही तो करते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं, अगर ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। Now solved examples is your homework। In our next video, we will start our exercise, that is 4.2। That's all for today. Thank you class.